Assalamu alaikum and welcome to Current Affairs, a fortnightly glance with Ahmed Ali Naqvi. In today's episode, we will talk about a very important development that took place recently, and it was China-Iran Strategic Cooperation Agreement. This agreement was highlighted in the media in 2020. This $400 billion agreement has very important geo-economic and strategic significance for the region as well as for the entire world. Before moving on to analyze this agreement, let's see what are the key elements and the key features of this agreement. As the name shows, this agreement is about strategic cooperation between China and Iran. So, broadly speaking, this agreement has three main components. This agreement talks about cooperation in three key areas. One, it is about strategic trade between China and Iran. It is meant to enhance the trade between both states, particularly the oil trade between China and Iran, as China is world's largest oil importer and Iran is one of the largest oil producing countries in the world. So this is a natural trade cooperation between both states. Secondly, this agreement also entails the investment cooperation between China and Iran. हम जानते हैं कि जो ईरान है उसके ऊपर पिछली कई दहाइयों से, ख़ासकर 1979 से जब से ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया, अमेरिकन सैंक्शंस मौजूद हैं। और पिछले कुछ सालों में सिंस 2018 जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर एग्रीमेंट से विड्रॉ किया है, ईरान के ऊपर सिग्निफिकेंट सैंक्शंस अप्लाइड हैं, जो प्राइमरी भी हैं, सेकेंडरी भी हैं, टर्शरी सैंक्शन भी अप्लाइड है। एंड Iranian economy is crippled by these sanctions. Although बाकी दुनिया की तरह से sanctions नहीं हैं, but virtually Iran is economically isolated from the international economy. So in that case, China की जो investment है, that is a very significant development for the Iranians. Chinese जो हैं वो ईरान की जो एलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखते हैं। सो इन्वेस्टमेंट जो की एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं उसके अंदर हम देखेंगे वो एनर्जी सेक्टर है, वो ट्रांसपोर्टेशन है और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इसी के अंदर पोर्ट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी है, उसका प्रपोज प्रोजेक्ट भी शामिल है इसके अंदर इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। द थर्ड एंड one of the most significant aspect of this cooperation and agreement is defense agreement. इस strategic cooperation agreement के अंदर चाइना एंड ईरान ने एग्री किया to develop strong military partnerships. Key areas of cooperation that were highlighted in this agreement were joint military exercises, similarly intelligence sharing related to counterterrorism, and mutual consultations on security issues. So ये तीन मेन एस्पेक्ट थे जो चाइना ईरान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट का हिस्सा है। आल्दो ये एग्रीमेंट पब्लिक नहीं है एंड इट इज़ लेस लाइकली कि चाइना के बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह ये डॉक्यूमेंट भी पब्लिक होगा, लेकिन दिस इज़ द ब्रॉड आउटलाइन जिसके बारे में डिफरेंट ऑफिशियल्स जो हैं ईरान के अंदर भी और चाइना के अंदर भी मीडिया को बता चुके हूँ। सो अभी हम डिस्कशन शुरू करते हैं इस बात से, वाई दिस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हैड हैपेंड बिटवीन बोथ स्टेट्स, और ख़ासकर वो स्टेट्स जिनके दरमियान में कोई हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नहीं है। चाइना ईरान हैड नेवर बीन दैट क्लोज पार्टनर्स इन द पास्ट। So what actually changed their policies
to enter into such a huge agreement of $400 billion. सो स्कॉलर्स के नज़दीक मल्टीपल रीजंस हैं कि ये एग्रीमेंट क्यों हुआ और डिफरेंट स्टेट्स के इंटरेस्ट क्या हैं, चाइना का इंटरेस्ट क्या है, ईरान का इंटरेस्ट क्या है. डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देते हैं. हम उनको ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक है इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और दूसरे होंगे जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स. इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं? अगर हम ईरानियन पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे हमने पहले कहा कि ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है. इन्फ्लेशन इज़ वर्स्ट इन ईरान, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑब्वियसली देयर, और वहाँ का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ आल्सो टू ओल्ड टू रीबिल्ड द ईरानियन इकोनॉमी. सो चाइना is the only and the most viable and the most willing state that could help Iran deal with its economic problems in the wake of the US and the Western sanctions. So Iranian economic weakness जो है that compels it to go towards China and look for Chinese assistance in their economic development, particularly in their infrastructure development. Secondly, nobody in the world is purchasing Iranian oil. Even China is not one of the major buyer of the Iranian oil, mainly because of the global sanctions. But once the sanctions are lifted, China is likely to become the most important client for the Iranian oil, and therefore it could help Iran boost its economy. अगर चाइनीज़ पर्सपेक्टिव में देखा जाए, चाइनीज़ हैव देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट थ्रू फॉर गोइंग फॉरवर्ड विद दिस प्रोजेक्ट. उसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट हैं. 1, इट इज़ बिलीव्ड दैट जो ईरान है वो एक ज़्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ ऑयल एंड इन फ्यूचर गैस हो सकता है एनर्जी इंटरेस्ट के हवाले से चाइना के लिए कंपेयर टू द अदर मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स. और उसकी बुनियादी वजह जो बताई जाती है वो मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स का अमेरिकन के साथ क्लोज पार्टनरशिप. जो यूएस चाइना राइवलरी है उसके अंदर अरब स्टेट्स हैव ऑलरेडी बीन क्लोजली अलाइंड विद द अमेरिकन्स. देयरफॉर जो मिडिल ईस्ट है वो चाइना के लिए उतना रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है इन द नियर फ्यूचर, एंड देयरफॉर चाइना हैज़ टू लुक अप टू अदर ऑप्शंस. ईरान इज़ वन ऑफ द सच ऑप्शंस. सो फॉर अ स्मूथ सप्लाई ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, this agreement is vital for the Chinese economic interests. Second economic interest of China is related to its BRI initiative. Belt and Road Initiative में China is developing multiple trading corridors to link it with Middle East as well as with Europe and Africa. This agreement will facilitate China's BRI initiative in the region. Third major interest of China is its own economic benefits. Chinese companies are eager to invest worldwide because Chinese economy is getting saturated, as a result of which they are accumulating surplus capital which needs to be invested to keep up with the global competition. So Chinese companies अपना capital invest करना चाहती हैं and invest productively करना चाहती हैं, and Iran provides one of the best options in this regard. And इसीलिए इसी के साथ साथ हम देखेंगे that would also help sustain Chinese economy because जो investment है ईरान के अंदर या बाकी दुनिया के अंदर, that is likely to help strengthen Chinese economies and state. अब आते हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या हैं, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या हैं, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या हैं चाइना और ईरान के. सो अगर हम ईरान के पर्सपेक्टिव में देखें
तो ईरान के सर्टन की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। और अगर हम इस डेवलपमेंट को लिंक करें इस वीक में होने वाली वियना कॉन्फ्रेंस में, जिसमें ईरान की न्यूक्लियर डील के हवाले से, उसको रिवाइव करने के हवाले से टॉक्स हो रही हैं बिटवीन P5+1 जर्मनी एंड ईरान, तो ये डील ईरान को एक बार्गेनिंग चिप देगी. इट वुड गिव ईरान एन अपर हैंड इन नेगोशिएशंस फॉर द रिवाइवल ऑफ दिस डील. हाउ, कैसे? बिकॉज इस डील से चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर, दैट इज लाइकली टू गिव अ रे ऑफ होप टू ईरानियंस कि उनकी इकॉनमी रिवाइव हो सकती है, इवन इफ यूएस इज कंटिन्यूइंग इट्स सैंक्शंस ऑन ईरान. So the kind of economic leverage that US had on Iran because of sanctions is adversely affected by this China-Iran strategic cooperation agreement. एक और सेंस में देखा जाए तो this deal is likely to bring Iran out of regional and global isolation. ईरान के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी थी, उसके अंदर ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई. ग्लोबली और रीजनली तो ऑलरेडी ईरान के कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं अरब स्टेट के साथ. बट दिस पार्टनरशिप विद चाइना विल हेल्प ईरान कम आउट ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन इन द रीजन एज वेल एज इन द इंडस्ट्रियल कम्युनिटी. अगर हम चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चाइना की जो ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है, एग्रीमेंट है, दिस इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर चाइना बिकॉज कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक दिस एग्रीमेंट एंड ईरान इज़ द गेटवे फॉर चाइना इनटू मिडिल ईस्ट. जो चाइना अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करता जा रहा है, तो मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मोस्ट इमीडिएट नेबर तो नहीं है चाइना का, बट इट इज़ स्टिल अ नेबर, वहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस ईरान के रास्ते से एक्सपेंड हो सकता है. सो ईरान माइट बी द फर्स्ट स्टेट विद चाइना हैड साइन एग्रीमेंट, इट माइट नॉट बी द लास्ट वन. सो दिस कुड बिकम एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्टेप टूवर्ड्स रीजनल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना. इसी कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरी जो कैलकुलेशन है चाइनीज़ के नज़दीक, जो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, वह है यूएस इन्फ्लुएंस को कम करना इस रीजन के अंदर एंड सिक्योरिंग द पेरिफेरीज ऑफ चाइना. हम देख रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस डील से विड्रॉ किया था, न्यूक्लियर डील से ईरान से विड्रॉ किया था, तो यूएस का अलायंस तो अरब स्टेट से तो बढ़ा, बट ईरान के ऊपर उसका लेवरेज कम से कम हुआ. अब चाइना व्हेन इट गोज़ टू हेल्प ईरान इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ईरानियंस हैं और जो चाइनीज़ हैं, दे विल जॉइंटली रिड्यूस द यूएस इन्फ्लुएंस इन द रीजन. अब हम आते हैं कि इस एग्रीमेंट के कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर. यहाँ पे स्कॉलर्स हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कि इस डील के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, एक बात जो ऑलमोस्ट तमाम स्कॉलर्स एग्री करते हैं, दैट यूएस चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो कोल्ड वॉर है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, वो अब मिडिल ईस्ट तक एक्सपेंड हो जाएगी. यूएस इज लाइकली टू take countermeasures to contain this Sino-Iranian growing nexus. So this is one of the major kind of, इसको हम कह सकते हैं एक नई डायमेंशन जो है डेवलप होगी मिडिल ईस्ट के अंदर. मिडिल ईस्ट के अंदर हिस्टोरिकली कॉन्फ्लिक्ट्स डिफरेंट नेचर के रहे हैं, बट एक नई नेचर का कॉन्फ्लिक्ट भी मिडिल ईस्ट में आएगा, और वो होगा न्यू कोल्ड वॉर बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स. So the horizon of the Cold War is expanding between US and China in Middle East as well.
एक और इम्पैक्ट जो हम देख सकते हैं वो यूएस स्टेप्स जो हैं, यूएस माइट टेक मोर स्टेप्स टू कोर्ट इरानियंस in order to prevent China a space and foothold in the Middle East. So if US is having a strong desire to contain China in Middle East, it has to somehow create its own leverage on Iran again. So there's a very real possibility that US might rejoin JCPOA and try to develop economic partnership, at least the European economic partnership with Iran to gain a leverage. इसी बात को अगर हम दूसरी तरह से कहें तो हम कह सकते हैं that Iran might become a point of strategic competition between China and the West. Each state trying to court the Iranians. एक पाकिस्तान के रेफरेंस से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के हवाले से भी डिफरेंट स्कॉलर्स इंटरप्रेट कर रहे हैं, ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और इस रीजन के अंदर एक डिबेट हो रही है हाउ दिस एग्रीमेंट विल हैव इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान और ख़ासकर सी पैक के हवाले से। दो तरह के पर्सपेक्टिव्स मौजूद हैं। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है दैट इज़ लाइकली टू अंडरमाइन द सी पैक। उनका आर्गूमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो कमिटमेंट है वो $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, ईरान के अंदर $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की और ट्रेड की जो कमिटमेंट है, विच मेक्स ईरान अ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन पाकिस्तान। तो चाइनीज़ जो अटेंशन है दैट विल बी नाउ मोर फोकस्ड ऑन ईरान दैन ऑन पाकिस्तान। दूसरा स्कॉलर्स कहते हैं कि विद द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स in Persian Gulf and Strait of Hormuz, China would not solely depend on Gwadar. That would create an independent route of Chinese trade through Indian Ocean with the help of Iran. So जो पाकिस्तान के एक लिमिटेड लेवरेज चाइना के ऊपर डेवलप हुआ था ट्रांजिट ट्रेड का, दैट इज़ गोइंग टू डिमिनिश। इन अदर वर्ड्स, स्कॉलर्स के नज़दीक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में जो इकोनॉमिक राइवलरी है और कंपटीशन है दैट इज़ लाइकली टू इंक्रीज। ऑन द अदर हैंड, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इस एग्रीमेंट से सी पैक को बेनिफिट मिलेगा, इट विल बोल्स्टर सी पैक, इन फैक्ट इट विल एनहांस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ सी पैक for Pakistan as well as for China. How? उनका आर्गुमेंट ये है that if Chinese want to import oil from Iran, then that is likely to be transited through Pakistan. Pakistan provides the best geographical and logistical support to transit the Iranian oil towards China. सेकेंडली, उनका आर्गुमेंट ये है दैट जो गवादर है प्रोजेक्ट दैट इज़ मोर सस्टेनेबल, सी पैक इज़ मोर सस्टेनेबल थ्रू गवादर देन थ्रू ईरान। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि जो ईरानियंस हैं उनके साथ दो प्रॉब्लम्स रहे हैं। वन, ईरान हैज़ नॉट अ हिस्ट्री ऑफ दैट क्लोज पार्टनरशिप विद चाइना व्हाट पाकिस्तान हैड इन द पास्ट। पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है, बहुत डीप और स्ट्रांग है कंपेयर टू ईरानियंस, और ईरान के अंदर अभी भी बहुत सारे एक रिजर्वेशंस मौजूद हैं अबाउट देयर पार्टनरशिप विद चाइनीज़, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी रिजर्वेशंस मिनिमम हैं। सो पाकिस्तान इज़ मोर रिलायबल फॉर चाइना दैन द ईरानियंस आर। सेकेंड जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है वो ये है कि जो ईरानियन स्टेट है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अनसर्टन रही हैं। सो अगर हम कंपेयर करें ईरान के पिछले कुछ 3-4 गवर्नमेंट्स को, तो करंटली हसन रूहानी से पहले जब महमूद अहमदीनेजाद थे तो ईरान की वेस्ट के साथ स्ट्रांग कोलिजन थी एंड देयर वाज इवन रिस्क ऑफ अ वॉर इन दिस रीजन।
उससे पहले सैयद मोहम्मद ख़ातमी थे और अगेन रिलेशनशिप रिलेटिवली बेटर थे। उससे पहले लेकिन हाशमी रफसंजानी थे, जिनके दौर में अगेन हार्डलाइनर थे और ईरान के रिलेशंस वेस्ट के साथ काफ़ी टेंशन में रहे हैं। सो ईरान के अंदर जो हार्डलाइनर्स हैं, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ईरान माइट नॉट बी अ सस्टेनेबल एंड अ रिलायबल सोर्स जिसके साथ चाइना रिलेशनशिप डेवलप कर सके। सो और आखिरी बेनिफिट जो बताते हैं स्कॉलर्स, दैट सी पैक इज़ ऑलरेडी ऑन इट्स पीक। सी के पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपनी पीक के ऊपर हैं एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सी पैक लाइफ इज़ देयर। तो ये सी पैक जो है, इस पे चाइनीज़ इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं दैट इट इज़ लेस लाइकली दैट दे वुड स्केल बैक और फाइंड एन अल्टरनेटिव टू इट। इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट and we are too much ahead to reverse it. So to conclude this entire debate, जो चाइना ईरान की पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, this agreement is extremely important and in my opinion after CPEC this is the most important geo-economic development in the region, having far-reaching consequences for regional states including Pakistan as well as for the global powers like United States and China. Thank you so much for listening to this video. Do see one-liner at the end of this video and do give your comments in the comment section. Thank you so much. God bless you and be safe.